Class, good morning. As you might remember that we are on group 15 and we have already discussed the physical and chemical properties of the elements, and now we have to start with the compounds of nitrogen. And to start with, we have dinitrogen. That's the allotropic form of nitrogen. That's how we get nitrogen in our atmosphere. So to start with, we have preparation, and if we are talking about the commercial preparation, commercially we can form dinitrogen by the liquefaction and fractional distillation of air, because nitrogen is present in abundance in air. So that's how you can do it, because its boiling point is quite low. So liquid dinitrogen is distilled, that leaves behind the liquid oxygen. But if in laboratory we have to prepare it, then we use ammonium chloride with sodium nitrite, and this gives us dinitrogen, water molecule, and NaCl. More than that, it also gives the impurity of nitrous oxide and nitric acid, which can be further removed by passing through sulfuric acid, because as you know, sulfuric acid has high tendency towards reacting with oxygen. So it is going to react with these, and dinitrogen can be obtained here easily. Next preparation, laboratory preparation, is by the thermal decomposition of ammonium dichromate. So ammonium dichromate, when heated thermally, when heated, it gives dinitrogen, water molecule, and Cr2O3, that is chromium oxide. Okay. Next is, if you want to prepare dinitrogen of highest purity, then we can use barium azide. Azide here is the ion, that is N3 negative. So this ion is known as azide ion. So if we have to write down barium azide, barium की oxidation state is +2 and azide is -1. So 2 azides would be required. So that's the molecular formula of barium azide. So barium azide on thermal decomposition. So barium azide on thermal decomposition gives us barium in solid state and dinitrogen. So dinitrogen from here is going to be pure in state, because no other gas is liberated. So it is going to be the purest in state. Okay. Now considering the properties, so as you know that this gas is colorless, odorless, and tasteless. It is non-toxic, and it has two stable isotopes, that is 14 nitrogen and 15 nitrogen. Moreover, it has very low solubility in water. It's not that soluble. Other than that, dinitrogen, you have already studied, is rather inert at room temperature, because it's going to have high bond dissociation enthalpy, as nitrogen atoms are forming triple bond. So this triple bond is going to be quite stable and require a lot of energy to break. But once break, it is going to rapidly react with metals and non-metals, and that is how it reacts. You can see over here, when lithium and magnesium when react with nitrogen, they are going to form nitrides, and that is the reaction that we have already seen when we consider the anomalous behavior of lithium and diagonal behavior of lithium and magnesium. तो आपको पता है कि lithium and magnesium का size is smaller, that's why they have compatibility with nitride ion, and that's why they combine with it and form nitrides. Okay, next, what nitrogen can do. Nitrogen can combine with hydrogen at 773 Kelvin in the presence of catalyst, that is iron and molybdenum ka catalyst, and this process is very important because it's Haber's process, and it is the industrial process for the preparation of ammonia. Now, more than that, nitrogen can combine with oxygen to form a number of oxides that we will consider, but for now, at 2000 Kelvin, if heated up to 2000 Kelvin, then nitrogen is going to form NO, nitrous oxide. Okay, other than this, we have to consider the uses of nitrogen. Let us see where dinitrogen can be used as. So it is mainly used in the manufacturing of ammonia and other nitrogen compounds, obviously. It can also be used to create inert atmosphere, because you know dinitrogen gas is quite inert at room temperature. So if you want to react metals and other chemicals at inert atmosphere, you can fill that atmosphere with nitrogen gas. Okay, dinitrogen here, you know, as used as refrigerant, it's has got quite a application as a refrigerant. So it is used to preserve biological materials, food items, and in cryosurgery. See what cryosurgery is. This is the biological or medicinal process where patients are treated, like which have tumor and other diseases like that, are treated at a very low temperature
तो इतने कम टेम्परेचर पे दोज टिश्यूज़ आर गोइंग टू डाई. तो इस तरीके की सर्जरी को हम क्रायो सर्जरी बोलते हैं. एंड टू ऑब्टेन दैट लो टेम्परेचर वी रिक्वायर लिक्विड नाइट्रोजन. तो वहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ होता है टू क्रिएट सच लो टेम्परेचर. ओके, दैट्स ऑल अबाउट नाइट्रोजन. Now we have to consider the next compound of nitrogen, and that is ammonia. To start with, we have already considered Haber's process, that is the industrial preparation. ठीक है, इसकी industrial preparation के लिए they just study this process only. It is quite important. So nitrogen is going to react with hydrogen to form ammonia, and this reaction is exothermic in nature. But this reaction is also reversible. As you can see over here, this reaction is in equilibrium, so this reaction is reversible in nature, and to make it move in forward direction you have to use Lee-Chatelier principle, which suggests that if you provide the favorable condition, this reaction is going to proceed further in the forward direction. So that's how you are going to get the product. तो इसकी conditions बहुत important है, because if you are not providing the favorable condition, this reaction might get move in backward direction rather than moving in forward direction. It may get reacted in backward direction to give you back the reactants and not product. So what are those conditions? Those conditions are the requirements of pressure, temperature and catalyst. So these conditions are over here, that you might need the pressure of 2 into 10 raised to power 7 Pascal, that is about 200 atmosphere. This is the pressure that you need, that is required for the formation of ammonia. Other than that, temperature must be around 700 Kelvin. And catalysts such as iron oxide with small amount of K2O and Al2O3 is also required, because it increases the rate of reaction to attain the equilibrium faster. So that is how ammonia is formed, with these three requirements, that is high temperature, high pressure and availability of catalyst. Other than that, in laboratory we can prepare ammonia by using urea. So urea, when treated with water, gives ammonium carbonate, which on further decomposition gives ammonia, water and CO2. Now if we have to prepare this ammonia on very small scale, then we can do that by treating any of the ammonium salt with caustic soda or lime. You can see over here the ammonium chloride has been treated with CaOH holdwise. Okay, we have treated it with slaked lime, and it has given us ammonia, water and CaCl2. Similarly, ammonium sulfate, when treated with NaOH, gives us ammonia, water and Na2SO4. So this is how small scale or laboratory preparations can be done for ammonia. Industrial, we have seen, we can do it by Haber's process. Okay. Now moving on. Yeah, this is the diagrammatic representation of formation of ammonia using Haber's process. Here gases like hydrogen and nitrogen has been made to enter the compressor, where they get liquefied, and a catalyst like iron oxide and Al2O3 and K2O react with it to form ammonia, and the remaining N2 and H2 gases are again pumped to the compressor. So that's how this reaction takes place industrially. So these are the chambers. So the reaction that look very easy to carry out require a lot of technology and machinery in industry. So that's how the apparatus look like. It is quite very different that we uses in laboratory, because obviously हम लोग बहुत small scale पे काम करते हैं जब हम laboratory में काम करते हैं, लेकिन industrially we have to consider a large amount of reactants and products. तो वहाँ पर डील करने के लिए हमारे पास मशीनरी या apparatuses भी बहुत बड़े बड़े होते हैं. Now coming on to its property में आपको पता है it is going to be colorless gas with a pungent odor. Okay, ammonia has got this pungent odor. If you don't know, let me tell you then that the smell from public sanitaries is because of ammonia only, because urea, that is our excretion, that is the main component of urine. So urea on atmospheric oxidation gives us ammonia only. So that smell is due to ammonia.
Now coming on to its freezing and boiling point, it is 198.4 and 239 Kelvin respectively. Solid and liquid state के अंदर it form hydrogen bonding with water, and that is why ammonia is quite soluble in water. Okay. Now talking about its shape, तो आपको पता ही है अमोनिया के पास एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर है, and that is why it is going to form pyramidal shape. Now ammonia is highly soluble in water, क्योंकि आपको पता है कि पानी के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है. इट्स हाइड्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ ऑक्सीजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. That is why it has got the property of high solubility in water. Okay, so on dissolving in water, as I've already told you that water के अंदर we have H positive, like H delta positive. So these lone pair are going to attack on H delta positive, and OH negative would be liberated. And if OH negative is liberated by any substance in acidic medium, in aqueous medium, that means that this compound is basic. So that's why ammonia has got the basic character that on dissolving in water it is going to liberate OH negative from the water molecule. So it is a weak base. It doesn't have OH of its own, but it liberates OH negative when dissolved in water. Now ammonium salts को आप acid के साथ react कर सकते हैं, because you know ammonium salts are going to be weakly basic. So what you can do is you can react them with acidic salts or acids. Now as you can see that it precipitates hydroxide of many metal from their salts. Here FeCl3 is going to be acidic in nature, ammonium hydroxide is basic, they are going to form salt, that is PPT. Ammonium chloride would be liberated. Now zinc sulfate and ammonium hydroxide, zinc sulfate and ammonium hydroxide are going to form zinc hydroxide, that is white PPT. Ammonium sulfate would be formed. So this is how the reaction take place between the acidic salts and ammonia gas or ammonium salts. Ammonium salts. Next we have to see that presence of the lone pair of electrons of nitrogen give it a Lewis basic property, because as we have seen that Lewis bases are the compounds which are electron donors. So because ammonia has lone pair of electron on nitrogen, it can easily or readily lose its electron to show the basic behavior. And you can see over here, when it donates the lone pair, it is going to combine with metal ions. और ऐसे compounds की formation को हम लोग complex compounds कहते हैं. Complex compounds we are going to study in detail in chapter 9, that is coordination chemistry. So over here you can see that copper plus 2 is going to attach with 4 ammonia molecules, and it is going to form this complex compounds. इसकी फॉर्मेशन ऐसे क्यों हो रही है और ये 4 अमोनिया के साथ क्यों जुड़ रहा है, दैट वी ऑल विल डिस्कस इन डिटेल इन कोऑर्डिनेशन चैप्टर. टिल देन यू कैन सी के वो अमोनिया के साथ जुड़ के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है. इसके अलावा अगर वो सिल्वर मेटल के साथ जुड़ता है तो यू ऑल नो दैट इट इज़ गोइंग टू फॉर्म AgCl, दैट इज़ वाइट PPT. As then that AgCl can be combined with ammonia to form again a complex compound. So these are some of the reactions of ammonia with metal and metal salts. Now moving on, we have to consider the use of ammonia. So ammonia is used to produce various nitrogenous fertilizers. So ammonia has got a very huge application in fertilization industry. And also it is used in the formation of some inorganic nitrogen compounds, the most important one being nitric acid. So also in the preparation of nitric acid we require ammonia. Other than that, liquid ammonia is also used as refrigerant. So it is also used in refrigerant. Okay, here I remember a simple thing. It's not related to your CBSE theory, but it might be important when you are working in lab. कि आप क्या करते हैं कि आपने अगर अमोनिया की कोई भी बॉटल आपको नई लैब में रखी हुई दिख रही है और अगर वो सील्ड है तो आप उसको डायरेक्ट अगर खोलोगे, दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड. किसी भी अमोनिया की बॉटल को खोलने से पहले आपको उसे फ्रीज़ करना पड़ता है, आपको उसे फ्रीज़र में रखना पड़ता है. ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? आपको पता है कि जो अमोनिया है वो बहुत ही वॉलेटाइल होता है. तो अगर लिक्विड नाइट्रोजन की बॉटल आपके पास है, लिक्विड अमोनिया की बॉटल आपके पास है, और आप क्या करते हो कि उसे बिना रेफ्रिजरेट करे खोलते हो, तो आपको पता है उसके ऊपर बहुत सारे वेपर स्टेट में अमोनिया के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे.
दैट मीन्स इट हैज़ बिल्ड अप अ ह्यूज प्रेशर इन द बॉटल. वो अपने आप ही मॉलिक्यूल्स गैसेस स्टेट में जाते जाएंगे और प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा. तो जैसे ही आप बॉटल को खोलोगे, एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से बॉटल एक्सप्लोड कर सकती है, फट सकती है. ग्लास बॉटल है तो इसीलिए रिकमेंड नहीं किया जाता. अमोनिया की बॉटल्स को खोलने से पहले उसको फ्रीज़ किया जाता है 1 दिन के लिए. तो जब वो रेफ्रिजरेट हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस होकर लिक्विड में चले गए हैं, तो हम उस बॉटल को आसानी से खोल सकते हैं विदाउट एनी वायलेंट एक्शन हैपनिंग इन द लैब. तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो. छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें आपको पता है कि अमोनिया वॉलेटाइल है, राइट. लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है, इसके वॉलेटाइल होने से क्या होगा, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे कंपाउंड जो वॉलेटाइल हैं उनकी बॉटल्स अगर सील्ड हैं तो आप डायरेक्टली खोलोगे तो उनके फटने के चांसेस हैं, क्योंकि उनके प्रेशर बहुत ज़्यादा है. ओके, नेक्स्ट एंड important topic is oxides of nitrogen. So as we know, nitrogen is going to react with oxygen to be in +1, +2, +3, +4 and +5 oxidation states. Yes, nitrogen can even form +5 oxidation state with oxygen. So all these oxides can be formed when nitrogen is being reacted with oxygen. So let's just start with nitrogen being in +1 oxidation state. So dinitrogen oxide, that is N2O. Here oxidation state of nitrogen is +1, and if you see the preparation, you can be prepared by this reaction. Preparation are not that important. Structures will be important, and we will be considering that. And its nature is, physical properties are colorless gas and neutral. Okay, so I guess we can consider structure here, or do we have them? Yes, we do have them in the next table. Okay, यहाँ पर हम सिर्फ क्या देख लेते हैं कि नाइट्रोजन किस किस स्टेट में रह सकता है. सी, if nitrogen has to be in +1 oxidation state and oxygen is in -2 oxidation state, if you are cross multiplying them, you are going to get N2O. So this is the very first oxide. तो सबसे पहला ऑक्साइड +1 स्टेट में नाइट्रोजन रहेगा तो N2O बनेगा. ओके, अगर +2 में है तो N+2 ऑक्सीजन -2, दिस इज गोइंग टू फॉर्म NO. तो NO का एक ऑक्सीजन का ऑक्साइड बन सकता है नाइट्रोजन के साथ. व्हाट इफ़ नाइट्रोजन इज़ इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, अभी हमने ये जो देखा ना, ओके, +3 में है, ऑक्सीजन -2 में है, दिस इज़ गोइंग टू फॉर्म N2O3. ओके, बट इफ़ नाइट्रोजन इज़ इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या बनेगा, फोर्थ ऑक्साइड वुड बी नाइट्रोजन इज़ इन +4, ऑक्सीजन इज़ इन -2, दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म NO2, दैट इज़ N2O4 बनेगा. 2 आप कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, NO2. देन वी हैव नाइट्रोजन इन +5, nitrogen +5, oxygen -2, it is going to form N2O5. So these are the oxides that we have to consider. To start with N2O, तो इसको हम लोग देखेंगे N2O का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है. So N2O is going to be like this over here. तो इसको द स्ट्रक्चर ऑफ N2O, और ये स्टेबलाइज कैसे होता है. सी, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसने 4 बॉन्ड्स बनाए हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, और इस नाइट्रोजन को बनाने चाहिए थे 3, लेकिन इसने बनाए सिर्फ 2 ही बॉन्ड है, तो यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज. एंड दिस चार्ज मॉलिक्यूल इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस. ये नेगेटिव यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी. सो यू विल हैव इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक दिस. यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, डबल थी, एंड हियर इट इज़ गोइंग टू बी सिंगल बॉन्ड. एंड O, यहाँ से चार्ज चला गया, सो दिस इज़ गोइंग टू बी पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो कोई चार्ज यहाँ नहीं रहेगा. यहाँ से ये वाली बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गई है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नाइट्रोजन तो ऑलरेडी था ही पॉजिटिव में. तो ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा, लेकिन यहाँ पे स्पीशीज़ चार्ज होती हैं और वो चार्ज रेजोनेंस के वजह से स्टेबलाइज्ड होते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट N2. नाउ कमिंग ऑन टू NO. तो NO का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो. NO का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है दिस. नाइट्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ. आपको पता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना नाइट्रोजन के पास, तो एक इन्वॉल्व हो गया है, 4 बचे. अगर ये एक और लगाएगा तो नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी हो जाएगी, और आपको पता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी स्टेबल नहीं होती. तो इसीलिए क्या होगा, नाइट्रोजन एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ. दैट मीन्स इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है. ओके,
और दूसरी वाली में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में, ऑक्सीजन का सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। सो दैट्स हाउ इट्स दिस डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। और आपको पता है कि अगर हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में रखेंगे, वी हैव टू डू नथिंग, लेकिन क्या करना पड़ेगा हमें, सी ये तो है ही नॉर्मल। दूसरी वाली बॉन्ड में नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ चार्ज गया है, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑक्साइड एंड दैट इज N2O3। तो N2O3 को अगर आप कंसिडर करोगे यहाँ पर, ये देखो N2O3 में क्या होगा, 2 नाइट्रोजन है आपके पास, ठीक है, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और आपको लगाने। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। सी, ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है और बाकी सभी जितनी बॉन्ड्स उन्हें बनानी चाहिए उतनी ही बना रहे हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबलाइज कैसे होता है, दिस नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेटेड ओवर दीज 2 बॉन्ड्स, ठीक है। इन दोनों बॉन्ड्स के ऊपर क्या होगा, रेजोनेंस होगी। दैट मीन्स यहाँ से देखो बॉन्ड लेंथ के ऊपर कैसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये वाली जो डबल बॉन्ड है, NO की जो डबल बॉन्ड है, ये NO की ये जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, लेकिन ये जो 2 बॉन्ड्स हैं यहाँ पर ये कैसी है, पार्शियल डबल बॉन्ड्स हैं। तो NO की एक बॉन्ड तो क्या होगी, शॉर्टर, लेकिन ये दोनों बॉन्ड्स क्या हो जाएंगी, दे आर गोइंग टू बी लॉन्गर, दे आर नॉट गोइंग टू बी सिंगल और डबल, दे आर जस्ट गोइंग टू बी पार्शियल डबल बॉन्ड्स। तो इसीलिए डबल बॉन्ड्स के मुकाबले वो क्या होंगी, लॉन्गर होंगी। सिर्फ इन 2 बॉन्ड्स के अंदर रेजोनेंस है, ठीक है, इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं जा पा रहा है। तो ये दोनों बॉन्ड्स रेजोनेंस में है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या आपके पास होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड्स, और यहाँ पर क्या होगी, ये पूरी की पूरी डबल बॉन्ड होगी। तो इस तरीके से N2O3 का स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। नाउ कमिंग ऑन टू N2O5। N2O5 का स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं कि कैसा होता है। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, रेजोनेंस कैसे होती है कैसे नहीं होती है वो आपसे पूछा जा सकता है। या बिफोर दैट वी हैव NO2 विद अस। तो NO2 सिमिलरली फिर वही होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, एक डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ और एक क्या बना रही है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर आपके पास NO2 क्या बच गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बच गए। एंड आपको पता है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आर नॉट जनरली स्टेबल। तो वो क्या करेगा स्टेबल होने के लिए, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी देखो, अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्म में रखोगे तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव और ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा। तो ये दोनों की बॉन्ड लेंथ देखने में तो अलग लगेगी आपको, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड लग रही है और ये सिंगल बॉन्ड लग रही है, बट द थिंग इज कि ड्यू टू रेजोनेंस बोथ ऑफ द बॉन्ड लेंथ्स आर गोइंग टू बी इक्वल। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि NO2 का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उधर बना के देखना पड़ेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टेबिलिटी, कि NO2 स्टेबल तो होता नहीं है, तो स्टेबल होने के लिए करेगा क्या, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ जो होती हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। तो NO2 के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ये स्टेबल नहीं है, इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, ये दूसरे NO2 के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। एंड दैट इज़ हाउ NO2 इज़ गोइंग टू डाइमराइज टू स्टेबलाइज इटसेल्फ। तो अपने आप को ये स्टेबल करने के लिए क्या हो जाता है, डाइमराइज हो जाता है। और डाइमराइज होगा तो क्या बना लेगा, NO2 मिलके बना लेंगे N2O4। आई होप दिस इज़ क्लियर कि NO2 डाइमराइज होते हैं बिकॉज दे आर ऑल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़। तो क्या बना लेते हैं, और N2O4 बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो सी, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज, इधर भी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, नेगेटिव चार्ज, एंड दीज नेगेटिव चार्जेस आर स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस। तो ये दो ऑक्सीजन के ऊपर डीलोकलाइज होंगे, ये दोनों ही बॉन्ड्स पार्शियल डबल बॉन्ड्स होंगी, और इसीलिए चारों ही NO की बॉन्ड लेंथ क्या होंगी, इक्वल। सो ऑल दीज 4 NO बॉन्ड लेंथ्स आर गोइंग टू बी इक्वल, दैट इज मीडिएट बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो उसके बीच में ये बॉन्ड्स होने वाले। दिस इज हाउ N2O4 इज गोइंग टू बी। नाउ कमिंग ऑन टू N2O5 का स्ट्रक्चर, जस्ट सी ओवर हियर N2O5 का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें देखो अगर आप, तो आपको नजर आ रहा होगा नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दिस नाइट्रोजन इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव, दिस ऑक्सीजन इज नेगेटिव, एंड अगेन दिस ऑक्सीजन इज नेगेटिव. So what happened here is that this negative charge is again stabilized by delocalization और resonance. तो ये यहाँ पर आएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, delocalization, जिसकी वजह से ये दोनों ही, ये चारों ही डबल बॉन्ड्स कैसी होंगी, एक्चुअल में पार्शियल डबल बॉन्ड्स होंगी। तो आपको नज़र आ रहा है कि 4 यहाँ पर यहाँ पर ये जो 4 है, ये जो 4 NO की बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर,
ये कैसी है, पार्शियल डबल बॉन्ड्स है। लेकिन ये जो दो NO है, एक ये और एक ये कैसे है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा जाता है कि N2O5 के अंदर जो 4 NO बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ तो छोटी होती है, दैट मीन्स दे आर शॉर्टर, लेकिन जो 2 NO बॉन्ड्स होती हैं वो बॉन्ड लेंथ में लंबी होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो आप उनको बता सकते हो कि जो 4 बॉन्ड्स हैं उनके अंदर तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, लेकिन ये जो 2 डबल बॉन्ड्स हैं यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड्स होती है, जिसकी वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है, बड़ी होती है। एज यू कैन सी ओवर हियर, ये देखो 119 नैनोमीटर की 9 पिकोमीटर की है जो पार्शियल डबल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड इज गोइंग टू बी 151 पिकोमीटर इन साइज। तो इस तरीके से क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ से बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद हम सभी डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल यहीं पर अगर आप देखो नीचे आपसे पूछा है एग्जांपल में व्हाई डज NO2 डाइमेराइज, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दोगे। तो अभी हमने देखा है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पे अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता तो फिर आप उसको बताओगे कैसे। तो NO2 का अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी थी वो ना, ये देखो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी थी, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसकी वजह से अनस्टेबल होता है और ख़ुद को स्टेबलाइज करने के लिए डाइमराइज होता है। तो आप स्ट्रक्चर बनाओगे और फिर उसको बता दोगे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे स्ट्रेट अवे। यहाँ पर देखो आपसे पूछा व्हाट इज़ द कोवेलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। N2O5 के अंदर नाइट्रोजन का कोवेलेंस क्या है, कोवेलेंस मीन्स कोवेलेंसी, दैट मीन्स हाउ मेनी बॉन्ड्स इट इज़ फॉर्मिंग। तो N2O5 में आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो कितनी बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। ये देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये नाइट्रोजन है 4 बॉन्ड बना रहा है, ये नाइट्रोजन है 4 बॉन्ड बना रहा है। सो दिस इज हाउ इट्स कोवेलेंस इज गोइंग टू बी। नाउ कमिंग ऑन टू द कंपाउंड्स ऑफ नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन दैट इज ऑक्सो एसिड। तो इसमें हमें नाइट्रिक एसिड पढ़ना है। नाइट्रिक एसिड में 3 नाइट्रोजन एसिड्स बनाता है, हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसमें से नाइट्रिक एसिड इंपॉर्टेंट है और हम यही कंसिडर करेंगे। तो इसकी प्रिपरेशन देखते हैं सबसे पहले कि हम इसे बनाते कैसे हैं। नाइट्रिक एसिड को हम प्रिपेयर करते हैं बाय ऑसवाल्ड मेथड। तो यहाँ पे आप देखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखो, पहले तो लैब में अगर आपको बनाना है तो आप सोडियम नाइट्राइट लेंगे, H2SO4 डालेंगे, सोडियम बाइसल्फेट निकल जाएगा, HNO3 बच जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन जो हम करते हैं वो ऑसवाल्ड प्रोसेस से करते हैं, जैसे हम अमोनिया बनाते हैं हैबर्स प्रोसेस से, ऐसे ही हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं ऑसवाल्ड प्रोसेस से। इसमें हम करते क्या हैं, 3 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में अमोनिया का ऑक्सीडेशन करा के NO बनाते हैं, उसके बाद NO का ऑक्सीडेशन करा के NO2 बनाते हैं, और अब इस NO2 को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो बनता है नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे आपको पता है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो एक्वस स्टेट में बनेगा, उसमें पानी होगा। तो 68% तक उसे डिस्टिल किया जाता है लेबोरेटरी पर्पज़ के लिए, लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा उसे प्योरीफाई करना है तो आप कंसनट्रेटेड H2SO4 उसके अंदर डाल सकते हैं। लाइक आप उससे डिहाइड्रेट करा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो 3 स्टेप में इसकी रिएक्शन है, ये आपको पता होनी चाहिए, ऑसवाल्ड प्रोसेस। नाउ कमिंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ HNO3। तो इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन का जो नाइट्रोजन यहाँ पर बनाता है 5 बॉन्ड्स, तो ये डबल बॉन्ड्स होती है, ये सिंगल बॉन्ड है, दिस इज गोइंग टू बी ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और ये एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता है तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आता है, एंड दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो ये 3 ऑक्सीजन पर डी लोकलाइज हो जाता है नेगेटिव चार्ज, एंड दैट इज़ हाउ दिस इज स्टेबलाइज्ड। तो ये एसिड की तरह बिहेव करता है। ओके चलो अभी आगे देखते हैं। वैसे ही कलरलेस लिक्विड होता है, लेबोरेटरी में 68% नाइट्रिक एसिड होता है बाय मास, और इसकी ग्रेविटी होती है 1.504, दैट इज इट इज़ समवट मोर डेंसर देन वाटर। गैसेस स्टेट के अंदर HNO3 जो होता है वो प्लेनर मॉलिक्यूल बनाता है, और एक्वा स्टेट के अंदर आपको पता है ये क्या करता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट द थिंग इज़ कि ये क्या करता है कि अपना H पॉजिटिव लूज़ कर देता है। वाली बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर है, तो ये क्या करता है H पॉजिटिव लूज़ कर देता है, तो पानी H पॉजिटिव लेकर जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, ये देखो, और पीछे क्या बच जाएगा, नाइट्रेट आयन। तो ये इस तरीके से क्या होता है, एसिड की तरह बिहेव करता है। नाउ कंसनट्रेटिंग जो HNO3 होता है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप नाइट्रोजन की देखोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी +5। ठीक है, +5 ये है, आपको पता है +5 से +3 में जा सकता है, -3 में जा सकता है, +5 से आगे तो नहीं जा सकता। दैट मीन्स ये रिड्यूस होगा।
अगर ये रिड्यूस होगा तो दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। दैट इज़ वाई HNO3 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसको अगर इतना अच्छा होता है कि नोबल मेटल्स के साथ भी ये रिएक्शन कर लेता है। तो कॉपर आपको पता है कि ज़्यादा रिएक्टिव होता नहीं है, लेकिन HNO3 के साथ ये क्या कर लेता है, HNO3 के साथ मिलकर ये बना लेता है कॉपर नाइट्रेट। आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया तो NO बनेगा, लेकिन अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया है तो NO2 गैस लिबरेट होगी। सिमिलरली अगर जिंक के साथ आप HNO3 डालेंगे, जिंक नाइट्रेट तो बनेगा ही, लेकिन अगर डाइल्यूट लिया है तो N2O गैस बनेगी और कॉन्सेंट्रेटेड लिया है तो NO2 गैस बनती है। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पर डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड लेने से सेम रिएक्टेंट के साथ अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, वो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दैट मीन्स ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CBSE में बहुत बार कंप्लीट द रिएक्शंस में ये पूछी जाती हैं। सो दे आर रियली इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इसे लिख के प्रैक्टिस करके याद करें। नाउ कमिंग ऑन टू दैट ओके, कुछ मेटल्स हैं जो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, दैट इज़ क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। क्योंकि आपको पता है ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। अगर ये एल्यूमिनियम है तो इसकी सरफेस पे Al2O3 प्रेजेंट रहेगा। तो एल्यूमिनियम तो रिएक्ट कर सकता है, लेकिन Al2O3 रिएक्ट नहीं करता, तो इसीलिए इसकी रिएक्शन होती ही नहीं है HNO3 के साथ, क्योंकि ये पैसिव लेयर फॉर्म कर देता है। पैसिव मतलब ऐसी लेयर जो कि रिएक्ट नहीं कर रही है। चलिए अभी आप यहाँ पे देखो कि HNO3 जो है वो सिर्फ मेटल्स को ही नहीं, नॉन मेटल्स को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। आयोडीन है ज़ीरो में से लेकर और यहाँ पर जा रहा है +5 के अंदर, तो ऑक्सीडाइज हुआ, आयोडोइक एसिड बनाया इसने, कार्बन को CO2 बनाया, 0 से +4 में भेजा, सल्फर को 0 से देखो यहाँ पे +6 में भेज रहा है, फॉस्फोरस को 0 से लेके और +5 में भेज रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो HNO3 को हम रखते ही बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी में। ना यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट हमारे पास आता है, और ये टेस्ट क्या है, ये टेस्ट है फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन, कि हमारे ग्रुप में हमारी किसी कंपाउंड में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं है। तो नाइट्रेट आयन का टेस्ट हम करते हैं, और वो कैसे करते हैं, उस टेस्ट को हम बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। तो इसमें जनरली हम करते क्या हैं, इसमें होता ये है कि हम अपना कंपाउंड लेते हैं, या आपने कंपाउंड लिया, अगर इसमें NO3 है, NO3 नेगेटिव है, नाइट्रेट आयन है, तो FeSO4 डालने पर, FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, तो इसमें Fe जो है वो +2 में है। साथ ही साथ H2SO4 डालेंगे वॉल के साथ साथ, तो 2 लेयर बन जाएंगी। H2SO4 जाके नीचे कलेक्ट हो जाएगी और ऊपर आपका कंपाउंड वाला सोल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर नाइट्रेट आयन है तो इस जंक्शन पे, जहाँ पे 2 लेयर्स मिल रही हैं, इस जंक्शन पे एक ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म होगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। ये ब्राउन कलर का होता है, तो इसके यहाँ पर जंक्शन पर एक ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाती है। और ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट एनालिसिस में नाइट्रेट आयन को हम ऐसे ही डिटेक्ट करते हैं। तो ये देखो, नाइट्रेट आयन जो है वो फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में, तो NO बनाएगा। ये NO जो है बचे हुए Fe के साथ रिएक्ट करेगा। ये आप देखोगे Fe जो है वो कॉम्प्लेक्स बना रखा है, दैट मीन्स हाइड्रेटेड फॉर्म में है फेरस सल्फेट। तो ये जब पानी इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाला कंपाउंड बनेगा, और यही नाइट्रोसो कंपाउंड जो होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राउन कलर। तो इस तरीके से ब्राउन रिंग टेस्ट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम नाइट्रेट आयन को डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वाइवा के लिए, जो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में यूटिलाइज हो रहे होते हैं। तो इसीलिए आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं वो हम देखेंगे अभी। तो उसके लिए हमारे पास है कि इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट विच इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र, और दूसरे नाइट्रेट्स बनाने के लिए भी जो कि एक्सप्लोसिव होते हैं या पायरो टेक्निक्स में यूज़ होते हैं, दैट इज़ हीट रिलेटेड टेक्निक्स में यूज़ होता है टू जनरेट एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ हीट। अदर देन दिस दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दूसरे नाइट्रो कंपाउंड्स बनाने में हम इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इट इज़ यूज्ड इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड एकिंग ऑफ मेटल्स। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेटल के सरफेस पे या स्टील के सरफेस पे रस्टिंग अगर हो रही है, कोरोजन अगर हो रहा है, तो उसको हटाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइज़र इन रॉकेट फ्यूल्स। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो डिफरेंट फील्ड के अंदर। दीज आर सम ऑफ इट्स यूजेस। तो यहाँ तक कि आप NCERT और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो यू मे लेट मी नो।
अगर आपने बाकी सब पढ़ लिया तो इट जस्ट रिवीजन फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।